ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن لگاتار معاشرے میں سماج میں بہترین انداز میں سماج کے سدھار کے لیے فلاح و بہبودی کے لیے الگ الگ عنوانات پر کام کرتے آ رہی ہے۔ ایسے میں شہر بنگلور اور بالخصوص مسلم علاقوں میں جس طرح نشہ عام تھا، گانجا عام تھا اور مختلف قسم کی نشہ آور انجیکشن لینے کی جو عادی ہماری مسلم نوجوان ہو چکی تھی، مسلم نسل ہو چکی تھی، بلکہ اب اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اگر واقعی میں پورے ایمانداری کے ساتھ چھان بین کی جائے، کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد اس چیز کا شکار اور ایک نوجوان ملے گا۔ ایسی صورتحال میں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن نے اس سلسلے میں پہلے آواز اٹھائی، پھر راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کی جس میں مختلف تنظیموں نے شرکت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں کے پولیس افسران سے اور اعلیٰ ہائی کمان سے بھی ملاقات کر کے اس سلسلے میں چوکنا ہونے اور ڈرگس کے جو مافیا ہیں ان پر قدغن لگانے اور جو یہ پروستے ہیں، بیچتے ہیں، گلی گلی پہنچانے کی کام کرتے ہیں، ان پر چھاپہ مار کارروائی کا مطالبہ لے کر ان افسران سے بھی ملاقات کی تھی، جہاں پولیس افسران نے، اعلیٰ ہائی کمان نے ان سے ملاقات بھی کی، ان کو پورا بھروسہ بھی دلایا۔ اس سلسلے میں اس پورے پولیس سے ملاقات کی کارروائی اور پھر جو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور پولیس نے جس تیزی کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے ڈرگز مافیا کے خلاف اور خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اس کی تفصیلات فراہم کی ہے علماء فاؤنڈیشن کے صدر مولانا مزمل صاحب اور دیگر احباب نے۔ آپ اس کو یہاں تفصیلات سے سنیں، مجھے اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آج جو پریس کانفرنس ہم نے بلائی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ڈرگس کے تعلق سے جو تحریک اور جس مہم کا ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا، آج کی یہ پریس کانفرنس اسی کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ جب ہمیں الحمدللہ یہ تحریک شروع کرے اس وقت ایک چیز کا احساس بھی ہوا اور بڑی شدت سے احساس ہوا، وہ یہ کہ انسان کا خاموش رہنا گویا کہ اس کی غلامی اور موت کی نشانی ہے، جبکہ سوال کرنا انسان کی آزادی اور اس کی زندگی کی نشانی ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہمیں یہ بار بار سوال اٹھائے تھے، بات دہرائے تھے، ہمارے مولانا اصغر صاحب اس موقع پر موجود تھے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی تھی، سوال کرنا، خاموش نہیں بیٹھنا کرو، اس لیے کہ یہ پوری جگہ پھیلی ہوئی چیز ہے۔ ڈرگس، گانجا، نشہ، ٹیبلٹ وغیرہ بہت پھیلی ہوئی چیز ہے۔ بسم اللہ نگر گروپن پڑھنے کا نام اور یہاں سے آغاز اس لیے ہوا کہ ہمیں سب فاؤنڈیشن کے ذمہ داران یہاں اور یہاں کے قرب و جواری کے ہیں۔ بازو تلک نگر ہے، اس کے ہمارے مولانا اصغر صاحب ہیں، بسم اللہ نگر سے ملتا جلتا علاقہ ہے، ہمارے قاری شیخ محمد صاحب مشکاتی ہیں، ماشاءاللہ منگم پاڑلے کے ہیں، لگ بھگ یہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہے لیکن ملتا جلتا علاقہ ہے، وہاں ہمارے اور بھی الحمدللہ ایک آدھ ساتھیاں ہیں۔ تو اس طرح ایک بات یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس بھی یہیں پر ہے بسم اللہ نگر میں، جہاں اس وقت ہمیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آغاز بسم اللہ نگر سے بسم اللہ بول کر کے ہو گیا تھا، لیکن جیسا کمنٹس وغیرہ ہے، جیسا لوگوں کے فون کالز ہے، اس سے اندازہ یہ ہوا، پہلے بھی اندازہ تھا لیکن بعد میں لوگوں کے کمنٹس وغیرہ کے بعد اس بات کا شدت سے احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ ہر مسلم اکثریتی علاقے کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر، چاہے بسم اللہ نگر ہو، گروپن پاڑلا ہو، بی ٹی ایم ہو، تلک نگر ہو، ٹینگ گارڈن ہو، نیل سندر کا علاقہ ہو، وہاں تو کچھ صاحبان وہاں سے فون کر رہے تھے، قبرستان میں بیٹھ کو حضرت، قبرستان میں بیٹھ کو شوخاں وغیرہ سب کرتے ہیں، اللہ عالم کیا کیا حقیقت، اور سنتے گئے تو ایک دم سینہ چھلنی ہو جاتا، خون کے آنسو رونا پڑتا۔ اور پھر یہ گوری پاڑلا،
हजरत हमारे कारगुजारी सुनाए, हमारे कारी शेख मोहम्मद साहब गुरदहल्ली, टीपू नगर, और फिर इस तरफ देखने गए तो डीजे हल्ली, केजे हल्ली, आजाद नगर वगैरह, ये सब ऐसे सिर्फ यहाँ से नहीं, बाहर से भी फोन आए, कोलार से, मैसूर से। बहुत काम की जरूरत है इस सिलसिले में, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब वहां के लोकल्स सवाल करने की जो है उनके अंदर हिम्मत आना, जसारत आना, सवाल करने की, जो जिम्मेदारान है उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास है, जैसा बात करना जिसे अकाउंटेबिलिटी अगर को बोलती। वरना मैं जैसा शुरू में बोलिया, खामोश रहना गुलामी की और मौत की निशानी है, जबकि सवाल करना आजादी और जिंदगी की निशानी है। और फिर एक हकीकत यह भी है, बात तो बिस्मिल्लाह नगर से हमें शुरू करे थे, लेकिन हमारी जो तंजीम है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह रियासती सतह पर बनाई गई है, बड़े ऊंचे मकासिद और अजाइम को लेकर के। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह लोग उलमा इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें खास ये बिस्मिल्लाह नगर, गुरपनपाड़ा, कुछ इलाकों को लेकर के महदूद नहीं हो सकते। हमारा काम तो बड़े पैमाने पर होने का है। अल्लाह चाह तो इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर ये तहरीक का आगाज करेंगे, घर को शुरू करी। खुद बिस्मिल्लाह नगर की बात ले लीजिए, कितना बड़ा इनकलाब आया हजरत यहाँ बिस्मिल्लाह नगर की हिस्ट्री में। आज तक इतने बड़े पैमाने पर जो है पुलिस उतरी नहीं, पकड़ धकड़ हुई नहीं, नौजवानों को जो है पकड़ने को गई नहीं, गाड़ियों की, घरों की तलाशी नहीं लिए। अल्लाह का फजल, सिर्फ एक आवाज। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले नहीं है यहाँ घर को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बोलने वाले ही। लेकिन मसला क्या है तो वैसा बोलने से जो है फायदा नहीं होता, थोड़ा लगना सामने वाले को, भाई जरा तकलीफ हो रही है कि नहीं, जरा वो बोलते ना, बुखार सिर के दर्द वाला आया तो उसे वो हिसाब से जो है टैबलेट दे को भेजती। अगर कौन की आया, उसका हाथ कटको जो है गिर गए, पैर कटको जो है गिर गए, या कैंसर का पेशेंट आ गए, उसे डोलो 650 दे ले तो इलाज हो रहा है, कहाँ हो रहा है इलाज उसका, तो उसके हिसाब से जो है उसका इलाज जो है तजवीज किया जाता है। तो इसी हिसाब से यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी बड़ी सख्ती के साथ बोलने की, बड़ी बेबाकी के साथ बोलने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जरा आदमी बोलती, बोले तो क्या हो जाता है, बंद कमरे में बैठ को ऐसा वैसा कर को, अगर कुछ फायदा नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज पर अल्लाह के फजलो करम से आज यहाँ के लोकल लीडर्स जागे अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदाराने मसाजिद जागे अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान जागे अल्हम्दुलिल्लाह। बस बोलने का भी फर्क रहता है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बोलने के अंदर नीयत रही, जज्बा रहा, खुलूस रहा, अल्लाह ताला वो बोल के अंदर जो है असरात देती है और उसका असर दूर दूर तक पहुंचता है, इतनी दूर तक पहुंचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत से मंजे हमारे साथियों वगैरह को फोन आ रही। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा ये इलाका जो, माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त है, बेहिसी की जिंदगी में जा रहा था। एक लिहाज से गैरत खत्म हो गई थी या बहुत हद तक कम हो गई थी, जमीर सो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जागे काम कर रही। अल्लाह का शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत, उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सिलसिले आगे बढ़ने को जाएंगे। लेकिन हमें भी जो है चूंकि खामोश बैठना नहीं है, बड़े पैमाने पर काम करना है। तो ये आप देख सकती, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है बेंगलुरु के अल्हम्दुलिल्लाह ये ले जाकर के दिए, तवक्को से ज्यादा अच्छा रिस्पांस वहां से आया। और फिर जो है उसके अंदर गुजारिश उनसे ये की गई थी कि यहाँ जो है काम ड्रग्स अवेयरनेस के ताल्लुक से काम करने, ये सब चीजों की रोकथाम के वास्ते जो भी प्रोग्राम्स हमें वगैरह करना चाहती फ्यूचर में, या यहाँ से नहीं दूसरी जगह भी, तो हमने आपका ताउन होना, सपोर्ट होना घर को, तो उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन करती, सपोर्ट देती घर को बोले। इसी तरह सुगुंडेपाड़ा पुलिस स्टेशन जो यहाँ का हमारा मकामी पुलिस स्टेशन है, उसे भी जो है जरा एकदम स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस जो कि जो है इस मामले में किसी भी तरह की गफलत नहीं करना घर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइल वहां से हमारे डीसीपी ऑफिस को भी आ गई है, इंशाल्लाह वहां से भी बहुत जल्द हमारी मुलाकात होकर के वहां से भी बात होने वाली है, डीसीपी मैडम से भी। इसके अलावा दूसरी एक बात यह है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि रियासती सतह की हमारी तंजीम है,
तो काम भी जो है बड़े पैमाने पर करना है। और ये जो आगाज तहरीक का हमें शुरू करे, उसके बाद जिस तरह के फोन वगैरह है जो इलाकों से खास तौर से जितने, जैसा हम शुरू में भी इशारा किया, उससे सिर्फ यश लग रहा है कि ज्यादातर जहां नशा, मंशियात, ड्रग्स, गांजा, टैबलेट वगैरह है, ये हमारे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर ज्यादा है हजरत। और फिर ये वो इलाके हैं जहां लीडर भी हमारे मुसलमान ज्यादा हैं। ये बहुत बड़े कहीं ना कहीं अफसोस की बात है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके और लीडर भी हमारे मुसलमान, कोई जो है फला है, कोई फला है, कोई ये है, कोई वो है, वो इलाकों के अंदर हो रहा है। अब सवाल है बस आपकी नीयतों के ऊपर शक नहीं है, चाहे वो किसी भी इलाके का काउंसलर हो, चाहे वो किसी भी इलाके का एमएलए हो, आपकी नीयतों के ऊपर शक नहीं है, लेकिन आपसे सवाल है और अदबन एहतरामन सवाल है कि आप जिस इलाके में एमएलए, कारपोरेटर या चेयरमैन जो भी बनाए गए, मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, क्यों आपके इलाके के अंदर इतने बड़े पैमाने पर इसका धंधा चल रहा है, इसका बिजनेस चल रहा है, खरीदी भी हो रही है, बिक्री भी हो रही है, तबाह बर्बाद भी हो रही, कारगुजारें आपके सामने आ रही, यकीनन आ रहे रहेंगे, आप काम भी कर रहे रहेंगे, लेकिन काबू में नहीं आ रहा। हमें भी ये दावा नहीं कर रही कि जो है हमें खड़जा को जो है सब कुछ सुधार डालते हैं, सबको जन्नत की टिकट दे डालते हैं घर को, लेकिन कोशिश तो कम से कम होना, बड़े पैमाने पर कोशिश करना, ये हमारी जो है गुजारिश है मुस्लिम लीडरान से भी। और खास तौर पर अभी कुछ दिन कबल ये मिनिस्ट्री की जो भागदौड़ चल रही थी, उसके अंदर जो है हमारे बाज मुसलमान लीडरान के चाहने वाले अपने एमएलए को जो है मिनिस्ट्री होना कर को बड़े पैमाने पर माशाअल्लाह एहतजाज करे और सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट करे, दबाव बनाने की कोशिश करे गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, चाहे हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब के चाहने वाले फॉलोवर्स हों, चाहे हमारे यानी हारिस साहब के चाहने वाले फॉलोवर्स हों, मैसूर में वो तनवीर सेठ के चाहने वाले तो जरूरत रोड पर सोगी, रोड पर बसंग के सामने जो है जैसा रूम में बिछाना डाल सोती वैसा रोड पर जो है लंबे पड़ेगी। तो यति जब अपने मुसलमान लीडरों से मोहब्बत आपका ताल्लुक है, होना चाहिए, रखिए, आप रखिए, आपके दिल में जो है इज्जत है, आजमत है, उससे हम ना कोई फर्क इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो इलाकों में आपके मुसलमान नौजवान जो बर्बाद हो जा रही, तबाह हो बर्बाद हो रही, आपके महलों के कब्रस्ताना जो इंसान की आखिरी आरामगाह है, वहां बैठ करके कब्रों को देख को अगर उनको मौत याद नहीं आ रही और वहां बैठ को उनको शौक याद आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है झिंझोड़ देने वाली बात है हमारे लिए। इसी तरह हमारे उलमा से भी गुजारिश, किसी को जो है मिनिस्ट्री से हटा दले, किसी को जो है पोस्ट से हटा दले कर को बाकायदा जाती, जाको बैठ को माशाल्लाह बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, काश कभी आप इतने बड़े पैमाने पर या इतनी जिम्मेदाराना मकामात पर बैठ करके आप जो है आवाज उठाते, आप उम्मीद है अपने अपने मकामात पर आप यकीनन आवाज उठाए रहेगा, लेकिन जिस जज्बे खुलूस के साथ जाको आवाज उठाए, आप आवाज बुलंद करे, वैसा ये तो उससे भी कहीं ज्यादा अहम, हसास और जरूरी मसला है। तो इसलिए जो है मेरी गुजारिश है बड़े बड़े एमएलएज या मिनिस्टर्स या एमपीस के फॉलोवर्स से भी, जितनी आपको अपने मिनिस्टर से मोहब्बत, ताल्लुक और अकीदत है, वत्ताज दरज जो है अपनी मुसलमान कौम से भी होना, बिरादरान वतन से भी होना। एक हदीस भी इस मौके पर याद है मुझे, मैं युहरमुल रिफ्का युहरमुल खैरा कुल्लहु, यानी जिसके अंदर हमदर्दी नहीं रही, जो हमदर्दी से महरूम हो गया, गोया कि उन्हें पूरे के पूरे खैर से महरूम हो गया। और एक बड़े आलिम का जो है अभी कुछ दिन पहले बयान सुन रहा था, उन्होंने बयान में अपना ये बोल रहे थे कि भाई अगर आप किसी की मदद कर सकती या उसकी तकलीफ को दूर कर सकती, उसके बावजूद आप उसकी जो है तकलीफ को दूर नहीं करते, तो फिर आप बड़े से बड़े आबिद हो सकती, जाहिद हो सकती, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर हो सकती, लेकिन नेक इंसान नहीं हो सकते, आप नेक नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात है। हमें चाहे हमारी अपनी उलमा की बिरादरी हो, मैं बड़ों की तो बात नहीं करता, उतनी हमारी हैसियत और ताकत नहीं है, मैं अपने हम उम्र लोगों की बात कर सकता हूं। मैं जो है चाहे तो बहुत कुछ कर सकती, नहीं कर को सिर्फ अपना अपना अगर देख लिए, बड़े पैमाने पर आवाज नहीं उठाए, अपने इलाके के जिम्मेदारान के अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं ले लेकर सवाल नहीं करे, तो जिंदा रहना मर जाना दोनों बराबर है।
क्या भी होने का नहीं है इंशाअल्लाह। वक्त मौत जो है अपने वक्त के ऊपर ही चाहने का है। मौत अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आती है ना बाद में आती है। इदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तकरीर का मौका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आवाज उठाए, हमारी आवाज को बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम बिस्मिल्लाह नगर के अंदर गुरपन पार्ले के अंदर शुरू होगा। लेकिन उसके साथ चूंकि और भी इलाकों के अंदर हमने काम करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर से परमिशन ले लो, को उनकी तायद भी हासिल कर ले। जैसा हमें कंसल्टेटिव मीटिंग के अंदर भी बोले थे हमें कि हय्यर 18-30 से भी जो है प्रेशर डालाती, उनसे भी इंशाअल्लाह जो है हमें मदद लेती घर को। तो उसका आगाज हो गया है, ये आप हजरात जो है देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि आप इसको जो अपने चैनल पर भी चलाएं। और बस यही कुछ बातें हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। और आप हजरात से भी अदबन गुजारिश, चाहे हमारे नौजवान देख रही, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रही, बुजुर्गान देख रही, उलमा देख रही, इवन हमारी मुसलमान इज्जतदार माएं और बहनें देख रही, चाहे बिरादराने वतन देख रही, आप जो है इस मामले में हमारा साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह निम्हांस के डॉक्टरान का फोन हमना आपको है और माशाअल्लाह बड़े बड़े दीगर हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स का हमना फोन आपको है, काउंसलिंग करने वालों का फोन आपको है। सबके अल्हम्दुलिल्लाह नंबरात हमें महफूज रखो ही, जिसका मतलब आने जो भी इस तरह के मसाइल हमारे पास आती हैं तो जिस इसमें क्या बोलती हैं, जिसके पास जिस तरीके का इलाज हो सकता है या जो जरूरत पूरी हो सकती है, इंशाल्लाह वो जरूरत भी हमें पूरी करने की कोशिश करती है इंशाल्लाह। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अस्सलाम वालेकुम।